A very warm welcome to the first live Q&A session hosted by the team of Sritara School of Wellbeing. Emotional well-being is a vital part of a healthy and fulfilling life. It doesn't mean feeling happy all the time, but rather being at peace within yourself and approaching life with clarity and self-awareness. Emotional wellness is about being able to navigate everyday challenges comfortably. Life isn't about making the right or wrong decisions. We always choose what seems best in the moment. But what matters most is that our choices are made with full awareness. It's perfectly normal to feel emotions like stress, anger, jealousy, hatred, but the key lies in how we respond. Focusing on solutions rather than staying stuck in problems helps us grow. That's why nurturing our emotional well being should be our top priority. We're so glad to have you with us today. Let me begin by introducing our speakers. I'm Surbhi Khurana, a psychologist at Sritara School of Wellbeing, and I'll be your host for this session. Joining us today is Mrs. Shanti Pahwa, a relationship and emotional health coach. She's the founder of Sritara and a retired associate professor from Delhi University. She will be answering your questions during this session. Also with us is Mrs. Sumita Setia, Sritara's most experienced counselor, who will be reading out the questions we've received via WhatsApp. To maintain your privacy, we are changing the names and the place of the individual from whom we've received the questions. Before we begin, let me briefly tell you about Sritara School of Wellbeing. This school was founded in 2005 and is a collective of psychologists, counselors, and therapists who have come together with one goal to help you or help individuals gain clarity and live a more meaningful and fulfilling life. If you have any questions, suggestions, or feedback during this session, please feel free to share them all in the chat. We'll make sure we go through them all. Without any further delay, let's get started. Over to Sumita Setia for the first question. थैंक यू सुरभि। मेरी आवाज तो सब सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, वो वीडियो मेरी हाँ ऑन नहीं जी हो पा मैम। रही, मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद बीच में कभी हो जाए। पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। पुणे से चारू ने पूछा है कि मैं बातचीत करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर पाती। क्या आप कुछ ऐसा तरीका बता सकती हैं जिससे मैं अपनी बात को कन्वे कर सकूं? सुमिता, असल में जिसको भी ये लगता है ना कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर पा रहा या कर पा रही, उसे ऐसा तभी लगता है जब सामने वाला उसकी बात मानता नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम अपने घर में एक फुल टाइम मेड रखना चाहती हो। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हो कि इसकी हमें सख्त जरूरत है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, उनको किसी ना किसी क्लास के लिए भी ले जाना पड़ता है, घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, तो काम बहुत होता है। तो ये पार्ट टाइमर से काम चल नहीं रहा। ऊपर से ये पार्ट टाइमर कभी भी बिना बताए छुट्टी कर लेती हैं। और ज्यादातर हम लोगों के सोशल सर्कल में सभी ने फुल टाइम मेड रखी हुई है, वगैरह वगैरह। ये तुम्हारे रीजंस होते हैं। अब तुम्हारे स्पाउस या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इस बात को अप्रूव नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बात कन्वे हो जाने की फील तभी बनती है जब तुम्हारी बात सुन ली जाए, समझ ली जाए और मान भी ली जाए। अगर सामने वाला तुम्हारी बात नहीं मानता, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात को समझना तो दूर, सुना ही नहीं जा रहा। पर तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई को तुम्हारी ये बात समझ आ जाती है जब तुम उन्हें बताती हो। तो उन्हें जब तुम अपनी बात यही बात कहती हो, तो उनके जेस्चर से तुम्हें लग जाता है कि इन लोगों को तो मेरी बात समझ में आ रही है। पर उन सबके समझने से समस्या हल नहीं होती। समस्या वहीं की वहीं रहती है, दर्द वहीं का वहीं रहता है। तुम्हें लगता है कि जब ये सब मेरी बात को समझ रहे हैं तो बात तो मेरी सही है, दूसरे समझ भी रहे हैं, शायद कभी मेरा स्पाउस या मेरे घर के लोग भी समझेंगे, जिन्हें कि वास्तव में समझना चाहिए। लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू समझा तो जा सकता था, पर मेरे घर वाले इतने इनसेंसिटिव हैं कि 100 बार बताने पर भी इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है।
समस्या तुम्हारी ये है कि जिससे तुम्हें समस्या है वहां तुम्हारी रियल नीड है कि वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुने और समझे। क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो सकती है जब वो लोग यानी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात को सुने और समझें। तुम्हारी अपनी क्लोज फ्रेंड से समस्या होती है तो तुम्हारी बहन को समझ में आ जाती है अक्सर, और बहन से समस्या होती है तो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड को भी मोस्ट ऑफ द टाइम समझ समझ में आ जाती है प्रॉब्लम। लेकिन वही नहीं समझता जिससे समस्या होती है। तो ये था एक एस्पेक्ट तुम्हारे पहलू का, तुम्हारी समस्या का। अब आते हैं इसी समस्या के अगले एस्पेक्ट पर। देखो, ये तुम्हारा यहां पूछने का एक ढंग है कि मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाती। ये तुम्हारा पॉलिटिकली करेक्ट होने का ढंग है, या कहें कि सभी के सामने न्यूट्रल तरीका है कहने का बात को। अदरवाइज तुम एक दूसरे को तो कहते हो कि क्या है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी है क्या। कई कह देते हैं और कई बड़बड़ा लेते हैं कि तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, सुनना तो कुछ होता नहीं है, किसी की भी नहीं सुनते हो, बस अपनी अपनी चलानी होती है। और भीतर तुम सोचते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरे आसपास के सब लोग बहरे हैं, इनसेंसिटिव है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। यही कारण है कि जो भी तुम्हारी बात बस सुन भर ले ध्यान से वो तुम्हें परम प्यारा लगने लग जाता है। वहां ऐसा लगता है कि मन मिल गया, किसी ने भावनाएं समझ ली तुम्हारी। लेकिन तुम देख नहीं पाते कि तुम्हारी बात वहीं समझी जाती है जहां कोई इश्यू नहीं होता। जिन्होंने बात समझी उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारी बात को समझना था, उनको तुम्हारे फुल टाइम मेड रखने का ना रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जबकि तुम्हारे स्पाउस को या तुम्हारे घर के लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है, और इसलिए उनका भी इस मामले में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर तुम देख नहीं रही। अपने स्पाउस का या तुम्हारे घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू तुम समझ लो तो भी बात खत्म हो सकती है। तुम्हारे घर वाले फुल टाइम मेड नहीं रखना चाहते क्योंकि उनके पास भी कारण होते हैं। उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि फुल टाइम मेड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है फुल टाइम मेड रखने से घर की प्राइवेसी खत्म होती है, वो हमारे घर की चीजें यूज करती है, हमें कहीं जाना हो तो उसे घर में अकेले छोड़ना पड़ जाता है, तो वो हमारी सारी चीजें, हमारा बेड वगैरह यूज कर सकती है। हाइजीन मेंटेन नहीं हो सकती, और घर के बच्चे भी अपना काम खुद ना करके उस पर डिपेंड करने लग जाते हैं, जबकि उनको कुछ ना कुछ घर का काम करना चाहिए ताकि वो आगे जाकर इंडिपेंडेंट हो सके। वो भी अपने दोस्त या अपने भाई बहन या माँ या किसी से भी अपनी बात करते हैं तो वो लोग भी उनकी बात को समझ जाते हैं, पर तुम ही नहीं समझ रही हो। और उन्हें लग रहा होता है कि तुम समझ जाओ तो बात खत्म हो जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए। और तुम ये देख ही नहीं रही हो कि मैं या कोई भी अपनी मर्जी से तुम्हें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जब तक तुम ना चाहो तुम्हें कुछ भी कम्युनिकेट किया नहीं जा सकता। और फिर एक पॉइंट पर दो व्यक्ति तो खड़े हो नहीं सकते, इसलिए ये भी असंभव सा है कि दो व्यक्तियों को एक जैसा दिखे। मगर फिर भी जब बातें होती हैं तो कुछ कम्युनिकेट होती हैं और कुछ नहीं भी होती। कुछ कम्युनिकेट हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। तभी तो किसी ने कहा है कि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। यानी जो कन्वे हो नहीं पाता हमारी नजर उस पर टिक जाती है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो विशेष मनस्थिति में, विशेष परिस्थिति में हो सकता है। तो बात यह है कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करने से पहले ये जान लो कि क्या तो कम्युनिकेट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या किया जा सकता है। बेसिकली तुम दूसरे को मोटे तौर पर दो तरह की तो बातें कम्युनिकेट करना चाहते हो, या तो तारीफ की बातें करना चाहते हो या कमी की बात करना चाहते हो। तारीफें तो कम्युनिकेट हो जाती हैं, कमी कम्युनिकेट होती नहीं है। तो तुम्हारे सवाल का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण साइड ये भी है कि तुम दूसरे को उनके व्यवहार की कमी कम्युनिकेट करना चाहती हो और वो तुम कर नहीं पाती हो। आप कह रही हैं कि एक ही पॉइंट पर दो व्यक्ति खड़े ही नहीं हो सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू या हमें अपने मन की बात कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो कह रही हूं कि अपनी बात कहने से पहले तुम ये सारे एस्पेक्ट्स देख लो कि कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तुम किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट नहीं कर पाती तो तुम्हें भी तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जब तुम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाती तो तुम्हें चोट लगती है। ऐसे ही जब दूसरे भी अपनी बात कम्युनिकेट तुम्हें नहीं कर पाते तो वो भी चोट खाते हैं। इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने से पहले, कन्वे करने के लिए पेन लेने से पहले
दूसरे के मन को चोट लगने के, अपने मन को चोट लगने के, झगड़ा हो जाने के कारणों को पहले जान लो, फिर अपनी बात कहो खुलकर। क्योंकि तुम ना तो हर्ट होना चाहती हो, ना ही किसी को हर्ट करना चाहती हो, ना ही झगड़ा करना चाहती हो, ना ही ये चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ झगड़ा करें। ये तुम्हारी जिंदगी का ही नहीं, सभी की जिंदगी का सच है। तो ऐसी स्थिति संभव है कि तुम अपना पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रीली और फियरलेसली कह तो सको, यानी तुम्हें सप्रेस ना करना पड़े, और दूसरा अपनी बात कहे तो तुम भी हर्ट ना हो, तुम भी झंझट में ना पड़ो। अब अगला प्रश्न पढ़ो सुमिता। हाँ जी, हाँ। नोएडा से सीमा ने पूछा है कि कभी कभी ग्रुप में इधर उधर की बातें जब चल रही होती हैं, तो बीच में कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड ऐसे जेस्चर देता है कि तुम्हें इंफीरियर फील होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता, तो सामने वाला ऐसे देखता है, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। ये जेस्चर मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने आप में लगता है कि क्या मैं ही बेवकूफ हूँ? सभी को ये बातें पता होती हैं पर मुझे नहीं पता, तो शायद मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ। अब सीमा का प्रश्न ये है कि ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं। हाँ सुमिता, देखो वैसे तो जो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं ना, वो उतने सीरियस नहीं होते, लेकिन हाँ ये बातें हर्ट करती हैं। जो बोल रहा होता है उसे तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला इस बात से इतना हर्ट होगा। उनकी तरफ से तो बस ये एक रिमार्क होता है, या कह सकते हैं कि कभी कभी वो सरकास्टिकली भी बोल देते हैं, या तुम्हारी लेग पुल कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, और इसे तुम्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। असल में ये आपकी कमी भी नहीं है, ये आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है। फॉल्ट अगर है भी तो वो कहने वाले की एक्सपेक्टेशन का है। इस समस्या के देखो दो पार्ट्स हैं, एक तो अंदर का पार्ट और एक बाहर का पार्ट। यानी एक बात तो ये है कि हम अंदर में क्या सोच रहे होते हैं, दूसरा पार्ट ये है कि हम बाहर से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अंदर तो आप खुद को बता सकते हो कि दुनिया में हजारों बातें हैं जो मुझे पता है, लेकिन लाखों करोड़ों बातें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं पता, और सारी की सारी बातें किसी को भी पता नहीं हो सकती, उसकी जरूरत भी नहीं होती। तो जब भी तुम्हें कुछ ना पता हो, तुम्हें खुद को भी और सामने वाले को भी यही कहना है कि मुझे हजारों बातें पता हैं, लेकिन लाखों करोड़ों बातें ऐसी भी हैं जो नहीं पता। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे सब कुछ पता होता हो। वैसे तो अगर आपको अंदर से ये बात क्लियर हो ना, तो बाहर तुम कुछ भी कह सकते हो या कुछ नहीं भी कह सकते हो। कभी ऐसे ही छोड़ दिया, कभी कुछ कह भी दिया, जैसे पूछ लिया फनी सा कुछ क्वेश्चन कि आसमान में कितने तारे हैं तुम्हें पता है क्या, या इस टाइम पे तुम्हारे स्पाउस कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जानती हो तुम। तो कुछ भी कर सकती हो तुम। पर एक बात सदा याद रखो कि सामने वाले को तुम बदल नहीं सकते, तुम उनको कुछ सिखा भी नहीं सकते। तुम्हें अगर कुछ नहीं पता तो ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती है उनकी एक्सपेक्टेशंस की। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हैदराबाद से गुंजन का कहना है कि मेरा स्पाउस बहुत फजूल खर्च है, और मैं इस बारे में अगर कुछ भी कहती हूँ तो लड़ाई हो जाती है। गुंजन का प्रश्न है कि क्या क्या उपाय है मेरी इस समस्या का। देखो इस समस्या का ना हल करीब करीब सबके दिमाग में यही आता है कि कोई ऐसा हो जो कि मेरे स्पाउस को समझा दे, तो वो खर्चा कम करना शुरू कर दे, तो हो जाएगी समस्या हल। लेकिन ये नहीं होता, ये हो नहीं सकता। समस्याएं ऐसे सॉल्व होती ही नहीं है। हमारे प्रोग्राम का पहला स्टेप ही यही है कि किसी को भी कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। तो अब किया क्या जा सकता है? देखो किया ये जा सकता है कि इस समस्या के कारणों को देखा जाए, इस समस्या के सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए, जो कि एक्चुअली तो प्रोसेस से ही हो पाता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें कुछ पहलू दिखाने की, ताकि तुम हमारे काम की सेंस ऑफ डायरेक्शन जान सको। पहला एस्पेक्ट, देखो पहले तो हिसाब रखो कि कितना खर्च ज्यादा किया गया है, किस पर किया गया है, ताकि तुम्हें स्पष्टता हो कि इस महीने में 500 या 5,000 ऐसा खर्चा था जो नहीं भी किया जा सकता था। उससे तुम्हारे मन में फजूल खर्च के धुआं बनने की बजाय स्पष्टता हो जाएगी कि इतने पैसे हमारे बच सकते थे पर खर्च हो गए। अब आते क्या हैं हुआ? दूसरे पहलू पर। अपने खर्चे को भी अवेयरनेस में देखो, क्योंकि होता क्या है कि हमें अपना तो हर खर्चा वैलिड लगता है, सही लगता है, जरूरत लगता है, पर दूसरे का खर्चा फजूल लगता है। तो तुम्हारे स्पाउस की नजर में भी तुम्हारा खर्चा भी ऐसा हो सकता है जो उसे फजूल लगता हो। थर्ड एस्पेक्ट, देखना होगा कि आपके पास पैसे की कितनी कमी है।
अब आपको लग सकता है कि ठीक है, जितने भी पैसे हों हमारे पास, फजूल खर्च करने के लिए तो नहीं है ना। लेकिन ये तो सोचो कि फजूल खर्च की कोई ऑथेंटिक या यूनिवर्सल परिभाषा तो है नहीं। यानी ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि ये वाकई फजूल खर्च है। ये तो हर कोई अपनी अपनी समझ से डिसाइड कर रहा है। तुम भी अपनी समझ से डिसाइड कर रही हो, तो वो क्यों ना अपनी समझ से डिसाइड करे। फोर्थ एस्पेक्ट, हर समस्या के सॉल्यूशन के लिए तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में किसका कितना महत्व है। तभी तो तुम जान पाओगे कि किस बात के लिए कितना परेशान होना है, कितना अड़ना है, कितना कहना है, कितना लड़ना है। तुम्हें देखना होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है या स्पाउस के साथ रिश्ता इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पहलू देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वो वास्तव में ही खर्चा ज्यादा करता है या करती है, तो तुम्हारा मन कर सकता है अपनी बात कहने का, क्योंकि ये तुम्हें उनसे शिकायत है। और किसी ने कहा है कि बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयां नहीं होती। तो अगर तुम्हें अपनी बात कहनी ही है, तो इस कहने को सीखने के लिए तुम्हें प्रोसेस से काम करना होगा। तभी तुम्हें बताया जा सकता है कि कैसे अपनी बात को रखा जाए। क्योंकि होता क्या है कि अभी तो तुम अपनी बात कह ही नहीं पाते हो। तुम्हें चुभता रहता है उनका फजूल खर्च, लेकिन तुम नहीं जानते कि दूसरे को कहा कैसे जाए। क्योंकि कुछ भी कहते ही बात टेक ऑफ कर जाती है। सामने से भी कुछ ना कुछ ऐसा जवाब आते हैं कि तुम्हें लगता है कि इससे अच्छा तो इनको कुछ भी ना कहा जाए। तुम्हारे झगड़े का सीन कुछ ऐसा होता है। तुमने देखा कि शाम को आते हुए पतिदेव एक बड़ा सा पैकेट लेकर घर में घुस रहे हैं। बिना जाने ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है कि पता नहीं आज क्या उठा लाए। खैर, वो खोलते हैं पैकेट, तो पता लगता है कि ये तो एयर प्योरीफायर है। अब आपको लगता है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, और आप अपने मन की बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाती, तो कह ही देती हैं कि ये क्या आप अनाप शनाप चीजें उठा लाते हो, इसकी क्या जरूरत थी, बेकार का खर्चा कर दिया। अब जहां भी ये चीज रखी जाएगी ठोकर बनेगी, और इस पर धूल मिट्टी भी चढ़ेगी, इसकी डस्टिंग भी करवानी पड़ेगी। पर आपको क्या परवाह, आपको तो ये सब करना नहीं पड़ता। खरीदने से पहले बात तो कर लेते, सलाह तो कर लेते। बस इस बात पर हस्बैंड का पारा हाई हो जाता है, और वो कहते हैं समझ तो है नहीं, कुछ ना कुछ बोलना होता है बस। पता भी है दिल्ली में क्या कितना लेवल है पोल्यूशन का। कभी नेट पर देखा है कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। बस तुम्हें तो बिना सोचे समझे मेरा विरोध करना है। मैं कुछ भी लाऊं तुम्हें लगता है कि ये तो बेकार है। हेल्थ की तरफ तो तुम ध्यान ही नहीं देती, बस कपड़ों गहनों पर जितना मर्जी खर्च करवा लो। पर हेल्थ पर कोई खर्चा करना तुम्हें फजूल खर्ची लगता है। ना कुछ सुनती हो, ना समझती हो, बस शुरू हो जाती हो। और इस पर तुम बड़बड़ाती हो, मैं नहीं सुनती आपकी, या आप नहीं सुनते मेरी। मेरी फीलिंग्स की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, सारा दिन इन्हीं के लिए खटती रहती हूँ, और ये मेरी परवाह ही नहीं करते। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची, सिवाय दुख तकलीफ के मुझे इनसे मिला ही क्या है। दोनों कोई एक दूसरे की बातें चुप जाती हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को दुख देने वाला, सताने वाला बेवकूफ पागल ही समझ रहे होते हैं। बात एयर प्योरीफायर फायर से हटकर एक दूसरे के दोषों पर आ जाती है। मुद्दा कहीं खो जाता है, दोनों का मूड खराब हो जाता है। वाइफ सोचती है कि कमाल है, ये मुझे बेवकूफ समझते हैं, क्या मुझे हेल्थ की नॉलेज नहीं है। उधर हस्बैंड सोच रहा है कि मैं घर के लिए कितने भी काम की चीज लाऊं, इसे कदर ही नहीं होती। तुम्हारे घर का माहौल भारी हो जाता है। जो हेल्थ एयर प्योरीफायर से अच्छी होने वाली थी, वो घर के क्लेश से खराब हो गई। अंत में एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, वो ये कि यहां तुम्हारी समस्याओं के उत्तर के रूप में तुम्हारी समस्याओं के कारण या पहलू दिखाए जाते हैं, एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं। तो ये तो संभव है कि मैं तुम्हें एक ही मीटिंग में तुम्हारी समस्याओं के साइड्स सारे दिखा दूं, और तुम्हारे हर क्रॉस क्वेश्चन का जवाब भी दे दूं, पर मन ऐसे एब्जॉर्ब करता नहीं है। इसलिए एक किताब जिसकी रीडिंग तुम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में पूरी कर सकते हो, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पूरा साल सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाता है। एक बार ये बेसिक तुम्हें समझ में आ जाए कि बताई गई नई साइड्स कैसे दिमाग में बैठती हैं, कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, तो बस तुम्हारी हर समस्या के संबंध में तुम्हें वो बताया जा सकता है जो अल्टीमेट भी है और प्रैक्टिकल भी है, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बचता ही नहीं है, और वो जाना हुआ लाइफ लॉन्ग काम भी आता है। देखिए, मेरा प्रयास आपको अपने मन के आराम पाने के काम में मदद करने का है, ताकि मेरी तरह आपके जीवन में भी कुछ नया, कुछ अलग घट सके। देखो, क्योंकि वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज इतना ही।
ओवर टू सुरभि। आ, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अभी पूछ सकते हैं, और भी लाइव क्वेश्चंस हैं तो, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है जो आज समझा उससे, या या कोई अपना एक्सपीरियंस पहले का हो वो भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मैं फाइनल एंड कर देती हूँ। Thank you all for giving us your time and attention today. We truly hope you found this session meaningful and worthwhile. As I said in the beginning, all names and places were changed during answering the questions to maintain your privacy. If you have any questions that come to your mind, even after this session, feel free to WhatsApp us. मैंने अपना WhatsApp हेल्पलाइन नंबर श्रीतारा का चैट में पोस्ट कर दिया है. We'll try our best to address them in the next question and answer session. As I said, Shritara's helpline number has been shared in the chat for your reference. Thank you once again for being with us. We look forward to seeing you all on next Thursday at 4 p.m. on Zoom. Bye bye. Thank you. एक मिनट में एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी, so much. कोई और भी शेयर कर रहा है शायद। हाँ, वो थैंक यू बोल रहे थे, आप बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ जो कहते हैं, अगर आप कुछ अप्लाई करते हैं और आपको दिक्कत आती है, कोई आपका एक्सपीरियंस होता है कि देखो ये आपकी बात प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप प्लीज बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात कही जाती है कि समझाया नहीं जाता। आप प्लीज अपने अपने घर में प्रैक्टिकल करें, और यहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या आप रोक पाए अपने आप को, क्या आप समझाने से रुक पाए, या आपने समझा दिया सक्सेसफुल रहे, वो अपने शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। जैसे आज हमने एक बात कही, समझाया नहीं जा सकता, इस बात को आप लेकर बात कर सकते हैं अगली बार। अब से लेकर अगले हफ्ते तक, एक हफ्ता है, इस बात को आप सब कोशिश करें प्रैक्टिकल करने की, और अगली क्लास में हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। क्योंकि हमें काफी एक्सपीरियंस हुए थे इस बात के, हमें लगा कि हमें एक बार में बात समझ में आ गई है कि समझाया नहीं जा सकता और हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं था, हमें टाइम लगा। काफी बार ऐसा हुआ कि हमने हमें मतलब जैसे गाड़ी के ब्रेक लगते लगते भी टाइम लग जाता है ना, हमें भी टाइम लग गया। हम सोचते थे नहीं समझा रहे, पर हम समझा बैठते थे और बाद में लगता था अरे ये तो समझाने लग गए थे हम। जब समझाने से सामने वाला समझ नहीं रहा था और दिक्कत हो रही थी, चोट लग रही थी, तो हमें फिर याद आता था कि नहीं, समझाना तो है नहीं, कोई समझ नहीं सकता। मुझे भी कुछ जब कहना है। हाँ, इरिटेशन होती है अपने मन में तभी फील होता है वो हम समझा रहे हैं। हाँ, राइट। पर शांति हमको मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये बात। हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। जैसे आप कह रहे हो ना, समझाया नहीं जा सकता, बट वो हमारी टेंडेंसी है, हम समझाना शुरू कर ही देते हैं। बट इस हाँ, चीज का आप ठीक कह रहे हो कि इसमें बहुत टाइम लगेगा हमें इसको समझने में। हाँ, ये आपकी हाँ, बात बिल्कुल परफेक्ट 100% ट्रू है। हाँ, हाँ। तो कोशिश करिए और बताइए अगली बार क्लास में कि हमने ऐसे करना शुरू कर दिया था या किया था, या हम नहीं नहीं समझाए, पहले समझाते थे अब नहीं समझाए। जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना, आप शेयर करेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ग्रो कर राइट, पाएंगे। तो पहली बात है कि राइट। समझाया नहीं जा सकता, इसके प्रैक्टिकल करना है। और आज ही मैं दूसरी जी। बात भी कहती हूँ कि बी ओरिजिनल। भाई आप उदास हैं तो उदास ही रहें, अपने इमोशंस को ना जैसे हैं वैसे ही बाहर से रहें। मतलब बी जेन्युइन। कोशिश करिए, जैसे ना हम बहुत मास्क लगाते हैं, बहुत, मास्क कि हमें, लगाते, एग्जैक्टली। हाँ, मास्क लगा दें कि हम उदास हैं अंदर से पर बाहर से खुश होने की कोशिश करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि हमें ढिंडोरा पीटना है जा जाके, पर हम खुद को भी सप्रेस करते हैं, कि डाइवर्ट करते हैं कि चलो दुख हो रहा है तो दुख नहीं मनाते और बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। नहीं, आप ना दुख हो रहा है तो दुख दुख दुखी हो लो थोड़ी देर, कुछ टाइम तक, तो फिर आपका दुख खत्म होगा। अगर आप इसके ढकते रहेंगे, इसको पोस्टपोन करते रहोगे, वो दुख खड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमारा मन का स्वभाव नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक दुखी रहना। आप अपने दुखी होने से ही दुखी हो जाओगे, और उसको हो जाने दो। ये लास्ट टाइम आपने बताया था मैम, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, 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 अपने मन को, अपने इमोशंस को हमने सप्रेस नहीं करना, हाँ, और उनको आगे आने देना है, उनको हाँ,
एक मतलब सजीव होके आपने उसको रियलाइज करना है कि यस ये चीज हाँ मेरे साथ हो हाँ रही है। आप हाँ उसको अपने साथ होने दीजिए एंड लेट इट हाँ पास ऑन इट्स हाँ ओन। हाँ। यस करेक्ट। तो ये दो चीजें प्रैक्टिकल हमने आज बात की, इसके एक्सपीरियंसेस हम अगली बार आप प्लीज सोच के आइएगा, तो शेयर करेंगे एक दूसरे से। राइट इसमें मैम। एक ये रुकने वाली जो बात है ना, इसमें मैं आज की टॉक से एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लो जैसे आज क्वेश्चन था कि फजूल खर्ची वाला, कि हस्बैंड शाम को आते हैं कोई चीज लेते हुए आते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ऐसी मेरी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही, पर हो सकता है यहाँ जितने लोग हैं उसमें से किसी की हो। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अभी भी हस्बैंड कोई ऐसी चीज लेके आ गए जो हमें लगता है कि भाई नहीं, ये तो नहीं चाहिए थी। तो जैसा कि मैम ने आज कहा ना कि भाई तुम ये कहने लगते हो कि देख तो लेते, नहीं, हमें ये नहीं कहना, हमें वहां समझाने से तो रुकना है, लेकिन सिंपली पूछना है कि ये क्या, सिंपली अपनी टोन को भी चेक करके पूछना है कि ये क्या है, क्यों लाए, और कहना भी है कि हाँ इसकी तो जरूरत वैसे थी नहीं, या कुछ भी। और अगर आप वहां पे अटकते हैं, समझा बैठते हैं, या आपका मन खराब होता है, सामने से कुछ सुनने को मिलता है, तो ये दोनों चीजें आप शेयर कर सकते हैं कि आज मेरे हस्बैंड वो चीज लाए, या वाइफ लाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, घर का कोई और भी ला सकता है, कि आज वो लाए तो मैं रुक पाई या मैं नहीं रुक पाई, या मैंने क्या कहा, तो और मुझे सामने से रिएक्शन क्या मिला और उस रिएक्शन से मुझे कैसा लगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें डे टू डे लाइफ की आपको शेयर करनी है। रुकने से रिलेटेड ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी बात हो सकती है। आज ये वाला एग्जांपल था, मैंने इसलिए ये दिया कि कहीं आप रुक पाए या नहीं रुक पाए, और नहीं रुक पाए तो आगे से रिएक्शन क्या मिला, और नहीं रुक पाए तो कहा क्या आपने। ये सब बातें आप शेयर कर सकते हैं रुकने के से रिलेटेड। इसमें बेसिकली सुमिता मैम हम एक चीज कर सकते हैं कि जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहले तो हम उस सिचुएशन को हम एकदम रिएक्ट ना करें। हम पहले उसको समझे कि हाँ ये चीज है, फिर थोड़ा सा रुके और फिर सोचे कि हमने अपनी बात को कहना कैसे। प्रीति जी, ये बात ना कहने में बहुत अच्छी लग रही है, पर ये ना जब सिचुएशन आती है याद नहीं रहती है। कोई बात याद नहीं, नहीं रहती अभी है। आपकी बिल्कुल शुरुआत है, ठीक है। तो वो याद नहीं आती ना, बाद में याद आ जाए तो भी आप शेयर नहीं करो। याद आती। जब ठीक। आपको ये ज्ञान की बातें एक्चुअली हमें ज्ञान की तरह पता तो हैं, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नहीं कोई बात नहीं, करता। आप अवेयरनेस में नोटिस करना शुरू करो। आप नोटिस करना यस। शुरू करोगे ना, उससे इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। फिर ये हो प्रोसेस है, जाएंगे। ये प्रोसेस है हमारा। एक मैं करेक्ट। अपनी बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी थी कि हाँ जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सामने बोल रहा है और हम सोचते हैं और रुकते हैं। तो मेरे को तो ये भी सुनने को मिला उस बात पे कि हम बोल रहे होते हैं और आप बोलते ही नहीं हो, पता नहीं किस सोच में गुम हो जाते हो। तो मेरे लिए तो ये भी प्रॉब्लम हो गई कि मैं रुकूं कैसे 2 मिनट भी अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करूं। ये भी सुनने को मिला मुझे कि हम जवाब क्यों नहीं देखो, देते हो जल्दी से। हाँ ये प्रीति, ये बात ये नहीं है कि तुम्हें सुनाने के लिए कही थी, ये उनकी फीलिंग थी, उन्होंने कह दी। और ये एक हाँ पहलू तो है ना कि भाई हाँ तुम सोच रही थी, उन्होंने कह दिया कि सोच में गुम हो। तो इसको एक बात की तरह देखो, इसको ऐसे नहीं देखो कि ये हाँ सुना रहा था मुझे, है ना। क्योंकि तुम भी अपनी बात हाँ सुनाती नहीं हो, बात कहती हो, वो भी अपनी बात कह रहा कहती था हो। सामने वाला। ठीक है। हाँ मैम मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम अब चीजों को पर्सनल ले लेते हैं एक्चुअली। शुरू से ही हमारी अपब्रिंगिंग शायद इस तरह से हो रखी है कि मतलब हमें ये लगता है कि अपने लिए तो चलो ठीक है जो होगा, बट दूसरे का ना ज्यादा ख्याल रखना है, दूसरे के इमोशंस का, दूसरे कैसा फील कर रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कम्पेयर टू योर ओन सेल्फ। हाँ, पर प्रीति जी, दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे का भले चाहने के आड़ में ना हम बहुत दुख भी देते हैं दूसरे को। हाँ जी। दूसरे को टोकते अच्छा। हैं, हम कहते हैं हमारी तो कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी बीत गया, हमें हमें कमी भी है तो दूसरे की कमी दूर हो जाए। हम दूसरे की कमी बताने की कोशिश करते हैं, हम कमी अपनी नहीं सुनना चाहते, वो भी नहीं सुनना चाहते कमी। वेरी गुड। चलिए। ठीक है। थैंक यू इंटरैक्टिव सेशन थैंक बनाने यू के सो लिए। मच। हाँ जी। और थैंक नेक्स्ट यू। वीक थर्सडे Thank 4 o'clock मिलते हैं। हाँ thank जी। you. बाय। थैंक यू थैंक सो यू मच। जी। थैंक थैंक यू। यू। बाय। सी यू। थैंक यू।